Assalamu alaikum viewers, you're watching UMT TV special transmission and I'm your host Laiba Khan. Viewers, today's show will going to be the most interesting show for all the people watching me out there because I'm not hosting any health and fitness show, I'm not hosting any HR show, it's a special transmission. And for making it more special, I'm having Sir Ali Asif with me, Chief Operating Officer at LC Group and Vice President of Microsoft Speakers. Also, he's Certified Life Coach. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. So first of all, thank you so much for sparing your precious time for us. It's a pleasure, absolutely a pleasure. Thank you, sir. Sir, let's begin today's session with your success story. Absolutely. First of all, thank you so much for the opportunity. I truly appreciate it. And my success story started when I was born. I'm product of single parenting system. Okay. Where when my mom, she was the sole provider of the whole family. Okay. And we were 5 brothers and sisters. Mashallah. And right from day one, my mom, she taught us many valuable lessons. कोई job करती थी वो? वो कपड़े सीती थी Oh. जो सिलाई मशीन पे कपड़े सीती हैं तो ये काम था उनका. तो डे वन से उनकी जो मैं ट्रेनिंग थी ना, दैट वाज वेरी क्लासिक ट्रेनिंग. वो हमें बताती थी कि बेटा उनके 2-3 लेसन मेरी लाइफ के जो है ना वो प्रोटोकॉल्स रहे हैं. दैट्स बीन द बेसिस ऑफ माय कैरेक्टर. एक उन्होंने बताया था कि बेटा दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, खालिक कायनात तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेंगे. हुकूकुल इबाद first and then हुकूक अल्लाह. Exactly. And second thing she told me, she said, तालीम याफ्ता नहीं बनना, काबिल बनना है. क्योंकि तालीम याफ्ता जाहिल आपको मिलेंगे, लेकिन पढ़े लिखे काबिल लोग बहुत कम मिलेंगे. इकबाल साहब का शेर है ना कि कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते. So she told me, build a character. Don't really follow success or money. Follow a character. One day you will be on a level where success, money, everything will chase you because you have a choice in your life. Do you want to work for money or do you want money to work for you? Money work for you, obviously. Exactly. It's a two different processes. When you chase money, it runs away from you. But when you work really hard, build a character and pursue your passion and you take your abilities to next level, then money works for you. That's amazing. So, मैं start करना चाहती हूँ कि in this world of hustle, let's suppose, so how to opt the successful version of life? आपने कुछ अपने भी कोड्स शेयर कीजिए, लेकिन एक डिटेल अगर हम बात करें कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए स्टेप्स की बात करते हैं. देखिए उसमें सबसे बेसिक जो चीज़ है ना, हमारा आजकल की लाइफ का सबसे बड़ा इशू, पीपल हैव नो सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी. लोगों को पता ही नहीं कि वो कौन है. आप मुझे ये बताएं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी इज्जत करें और मेरे टैलेंट की कदर करें, बट इफ आई डोंट रिकॉग्नाइज माय ओन टैलेंट, if I don't recognize my own personality, my own strength, my weaknesses, my good things, my bad things, how is this possible? What's going to recognize my talent? So the first thing for people in today's life is very important to understand their own selves first. Self recognition is the first. Exactly, that's the key. मैं जब बड़ा हो रहा था, coming back to my own success story, तो मेरी मम ने जैसे मुझे बताया कि बेटा सक्सेस को चेज नहीं करना, काबिलियत को चेज करना है. एंड दैट वाज द बेसिक ऑफ माय होल लाइफ. जब उन हालात में आंख खोली, फिर एक टाइम पे आया कि ड्रीम था कि यूके जाना है, कुछ वहां पे पढ़ना भी है, लाइफ भी बनानी है. जब आप यूके जाते हैं, यू थिंक लाइक इट्स ऑल रोजी, इट्स ऑल स्माइल लाइफ एंड एवरीथिंग विल बी सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑल ग्रास इज नॉट ग्रीन. एग्जैक्टली. पर वहां पे जब मैंने लैंड किया तो जिस दोस्त ने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से, उसने वेरी नेक्स्ट डे वी गॉट माय लगेज एंड गिव इट टू मी, सेड वी आर डन. It's your life, it's your world, and you need to find your own way out. I'm not going to help you at all. You will not believe it, I struggled big time. 7 दिन ऐसे हुए when I ran out of money. I had no money in my pocket. I was sleeping on the road. And I was drinking only water and I only had cookies to eat. Nothing more, nothing less. और एक टाइम वो आया when I questioned myself why I'm doing all this. I can easily go back, give up everything, and sleep in my own home's comfortable bed, exactly, have my mom's food and just enjoy my life. But at the same time, I said, you know what? This is my time to shine. This is my time to prove to myself that I'm worthy. I'm here for a reason. I can't afford to fail because if I fail, everybody around me will be a failure story. Yeah. तो आप क्योंकि देखिए जो आप करते हैं ना, यू इंस्पायरिंग अ होल जनरेशन, नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन. आप अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं, वो फुटप्रिंट्स को फिर लोग फॉलो करते हैं. अगर वो फेलियर को फुटस्टेप्स है तो बच्चे डे 1 से सोच लेते हैं कि नहीं जी, बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए बिकॉज बाप की बनाई हुई जागीर है, एंड जस्ट वी हैव टू एंजॉय. एग्जैक्टली.
खुद से कुछ नहीं तो करना। ये कि वो जो बुरा टाइम था ना, मैं लोगों को कहता हूँ जो फेलियर है ना इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपका टफ टाइम, आपका फेलियर आपको सबसे वैल्यूएबल लेसन्स देता So है here लाइफ my के। second question is कि is failure always ends with a demotivation? हम No. समझते हैं हम फेल हो गए, ओ यार अब तो बस हम तो कर ही नहीं सकते, we are not able to do it. थोड़ा सा इस पर इट बताइए। ऑल डिपेंड्स, क्योंकि पता है मैंने कहा पहली चीज जो बेसिक चीज है बंदे की वो है उसकी सेल्फ आइडेंटिटी, कि जब वो अपने आप को कर लेता है ना फिर उसे पता मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मैंने क्या करना मैंने नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू बी स्पीकर बट इफ आई एम डूइंग अ डे जॉब, हाउ आई एम गोना बी सक्सेसफुल इन माय लाइफ बिकॉज ऑलरेडी मेड अ कॉम्प्रोमाइज। मैंने अपनी फील्ड को परस्यू करने के बजाय एक डे जॉब कर ली, तो मेरी लाइफ में तो डिससेटिस्फैक्शन ही रहेगी। आई Exactly. विल ऑलवेज बी अनसेटिस्फाइड पर्सन। मैं मौन करूंगा, मैं हर टाइम पे रोना धोना मचाऊंगा, लक का गिला, ये वो सारा कुछ। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका टैलेंट क्या है, आपके अंदर स्किल्स क्या है। और फनी थिंग है, व्हेन अ चाइल्ड इज बिटवीन द एज ऑफ 4 and 7 ही गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू हिज पेरेंट्स दैट दैट्स व्हाट आई वांट टू बी इन माय लाइफ। वो उसी टॉय से खेलेगा जिस टॉय के साथ उसने लाइफ अपनी आगे बढ़ना है। वो क्रिकेट के बैट के साथ खेल रहा है, गिटार के साथ खेला, एरोप्लेन के साथ खेल, दैट इज हिज पैशन। इट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको नर्चर करें, उसको करें, एंड देन उसको कभी ये मत बताएं कि उससे कमिंग बैक टू सेम थिंग कि जो फेलियर मोटिवेशन में तब होता है। देखिए फेलियर क्या है, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर इन लाइफ, सिर्फ लर्निंग है। Every single failure gives you two options. One, analyze yourself. Improve हो yourself. सकता है कि आपके अंदर वो एबिलिटीज ही नहीं है, हो सकता है अभी आपका टाइम ही नहीं है, हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज प्लान्ड समथिंग डिफरेंट फॉर यू Yeah. ऑल टुगेदर। Something better, yeah. सो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग अ विक्टिम मेंटालिटी, यू कैन जस्ट लुक इनवर्ड्स एंड एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी। किस्मत का गिला करना, लोगों को गिला करना, इट्स रियली इजी, इट्स द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे आउट, but it's not going to resolve anything. Zabardast. So, not one or two. What if someone is facing continuous failures? उससे हो ही नहीं पा रहा है, फिर क्या करे वो? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट ही नीड्स टू आस्क हिमसेल्फ, इज ही डूइंग द राइट थिंग। जैसे मैंने बताया कि मैं जब यूके गया था, आई क्वेश्चन माई सेल्फ, एम आई ऑन राइट पाथ। जब मुझे मेरे दिल ने बता दिया कि यस यू आर ऑन राइट पाथ, इट्स अ टफ जर्नी बट वी गोना मेक इट सक्सेस स्टोरी वन डे। वो सफर जो शुरू हुआ था एक कंपनी से, छोटी सी कंपनी से शुरू हुआ था। ये दिस इज मैं बहुत पर्सनली इंटरेस्ट ले रही हूँ आपकी स्टोरी में, तो मैं चाहती हूँ स्टार्ट आपने कहाँ से किया वहाँ एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब मैं उस टाइम से गुजर रहा था ना, तो लोगों ने मुझे डे जॉब ऑफर्स की कि चलो आ जाओ होटल में बर्तन धो लो या रेस्टोरेंट में काम कर लो। मैंने ना कर दी, मैंने कहा भूखा 20 दिन सो लूंगा बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई ड्रीम्स, बिकॉज व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज देन यू कॉम्प्रोमाइज थ्रू आउट योर लाइफ। आपके मैं कहता हूँ लाइफ में देयर इज ओनली प्लान, दैट्स प्लान ए, देयर इज नो प्लान बी। जब आपके पास प्लान बी होता है देन यू आर प्लानिंग टू फेल एनीवे। आप फेल होने का ही प्लान, क्योंकि आप कहते हैं अच्छा ये ना हो तो मैं ये कर लूंगा। नो, देयर शुड बी ओनली वन प्लान एंड दैट्स प्लान ए, दैट्स इट। That's great. स्टक टू योर गन्स, दिस इज माय प्लान, नो मैटर इफ सर्कमस्टांसेस आर अगेंस्ट मी, इफ लक इज अगेंस्ट मी। If अल्लाह I'm सुब्हानहू receiving ताला, continuous failures, अल्लाह सुब्हानहू ताला तो आपका हाथ छोड़ते ही नहीं है। खालिक़े कायनात कैसे हो सकता आपके साथ अच्छा करें, इसके साथ नाइंसाफी करें। खालिक़े कायनात के लिए, बिकॉज आई से गॉड डज नॉट क्रिएट गार्बेज। अल्लाह सुब्हानहू ताला गार्बेज नहीं बता, ही क्रिएट्स डायमंड्स। यू आर डायमंड, आई एम डायमंड, एवरीबॉडी इज डायमंड्स। इट्स अप टू मी, डू आई रिकॉग्नाइज माय वर्थ और डू आई सिंपली वेस्ट माय टाइम। तो उसी टाइम पे जब मैं कर रहा था ये सारा कुछ, कमिंग बैक टू माय ओन सक्सेस स्टोरी, तो मुझे फिर एक जॉब मिली। उस जॉब में मैंने एज बिल्कुल बॉटम से शुरू किया। 1 साल के अंदर मैं मैनेजर बन गया उसी कंपनी के it अंदर was जो a हमारे bank, something. ये कॉल सेंटर था एक। Call center. उसी कंपनी के अंदर फिर 1 साल के बाद मैं मैनेजर था। उसी कंपनी में जो हमारे चेयरमैन साहब, उनकी वाइफ और उनके साथ भाई और बहनें काम करते, उसके बावजूद ही मेड मी सीईओ ऑफ दैट कंपनी। Oh my God. तो वहां से सफर जबरदस्त। ऐसा शुरू हुआ कि कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। सही से इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मैं प्रैक्टिस जाना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस, हमने सुना है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो कितनी प्रैक्टिस, कितनी रीट्रायल्स के बाद आपको जो है ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको मिला? देखिए लाइफ कोचिंग में एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी, ट्रस्ट द प्रोसेस, कि प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें। यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस टू गो समवेयर। यानी शॉर्टकट्स नहीं है। एग्जैक्टली ये कैसे हो सकता है, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं 6th फ्लोर पे जाना चाहता हूँ, छलांग मारो में पहुंच जाऊं। Yeah. आई हैव, देखिए आपने आजकल देखा सोशल मीडिया पे ओवरनाइट हिट्स होती हैं। कोई लोग आते हैं, वो बेचारा एक चाय वाला था, ओवरनाइट सक्सेस हुआ, Exactly. लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पाया बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो द प्रोसेस।
हम जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं दैट इज द की टू सक्सेस, क्योंकि वो हमें कुंदन बनाती है, वो हमें सोना बनाती है। हमारे टफ टाइम जो है ना, दे डिफाइन आवर कैरेक्टर। एग्जैक्टली। जब आपके टफ टाइम होते हैं, यू हैव टू चॉइसेस, आइदर दे मेक यू और ब्रेक यू, बट 99% दे गिव यू द चांस टू बिल्ड योर कैरेक्टर। अब जो मेरा प्रैक्टिस, आपने बात की थी प्रैक्टिस के ऊपर, मेरी प्रैक्टिस क्या है? Why people fail? Because people work 99%. They utilize 99% of their abilities. They utilize 99% of their time. They utilize 99% of their energy. But that 1% that makes all the difference. और ये 99% आपने बहुत ज्यादा बताया है। Exactly. 70% अब देखिए, 60% आप अगर घर से उठ के आ गए, अपने बिस्तर से उठ के आ गए, ऑफिस के अंदर आ गए या कॉलेज के अंदर आ गए, तो यू हैव डन ऑल द हार्ड वर्क एनीवे। या अब आप आगे कुछ क्रिएटिव करें ना। मुझे क्यों सीईओ 2 साल के बाद बनाया? बिकॉज आई हैड समथिंग डिफरेंट टू ऑफर। मैंने वो ऑफर नहीं किया जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी हो रहा था, ऑफर समथिंग डिफरेंट। एंड दैट्स अ की लेसन फॉर एनीबडी, स्पेशली फॉर यूथ, इज ऑफर समथिंग डिफरेंट। बी क्रिएटिव। जो दुनिया में पहले हो रहा, आपने वैसा किया तो यू विल बी एग्जैक्टली लाइक अदर पीपल। बट इफ यू वांट टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ऑफर समथिंग डिफरेंट। सही। व्हाट इफ अ पर्सन गॉट द सेंसेशन ऑफ बीइंग यूजलेस? उसको अपना कोई फायदा नजर नहीं आ रहा मास्टर में, तब क्या करेगा? देखिए, इट ऑल कम डाउन टू योर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमें थोड़ी सी जैसे रिजेक्शंस मिलती है ना, वी थिंक लाइक वी आर फेलियर्स। देयर इज नो सच थिंग एज आई सेड इज फेलियर। सोसाइटी में आपके लिए कोई सीट नहीं है, और आप फिट नहीं हो पाए अपनी फैमिली के साथ, सब बहुत ज्यादा हंसते खेलते हैं, आप सब अच्छी जॉब्स पे हैं और सिर्फ आप अपने आप को कमतर समझते हैं, तो उसका क्या हल है? अपनी आप की एबिलिटीज को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए? देखिए, इट्स कमिंग बैक टू एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हिच वी टॉक्ड अर्लियर, इज अबाउट सेल्फ आइडेंटिटी। अपने आप को आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हारा रंग जो है वो काला है। अच्छा। तो उस वजह से मुझे फैमिली में ना बड़ा वो मजाक उड़ाया जाता था। सही सही। तो मैं उसमें कॉम्प्लेक्स में चला जाता था कि ये क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं। बट जब मैंने उस चीज को इग्नोर करके अपनी एबिलिटीज के ऊपर फोकस किया, नाउ ऑन दैट लेवल, जब रंग से ज्यादा मेरी एबिलिटीज की कदर है। तो जब आपका मुआशरा मजाक उड़ा, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लासिक एग्जांपल है कि लोगों ने उनको पत्थर मारे, उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंका, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। उन्होंने विक्टिम मेंटालिटी नहीं डेवलप की। ही फॉलोड हिज पाथ, ही ट्रस्टेड हिज प्रोसेस एंड इवेंचुअली ही सक्सीडेड। सो कोई भी यूजलेस नहीं इस दुनिया में। It's all to do with your mindset. सही से। रिस्क कितना इंपॉर्टेंट होता है एक लाइफ में? आप गए यूके, आगे से हो सकता था कि आपको कोई 1-2 दिन में कुछ ऐसा आप एक्ट करते कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाती, कोई भी रिस्क हो सकता था, कोई आपका जो आपने रेंट लिया हाउस पे कुछ भी वो आपसे छीना जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है? वहां जाके आपको पता था कि मैं अकेला हूँगा, तो थोड़ा सा रिस्क के बारे में बताइए। हमारी यूथ रिस्क नहीं लेती है, सेफ साइड पे चलना पसंद करती है। देखिए, रिस्क टेकर जो होते हैं ना, वही दुनिया में कुछ करते हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन एक होता बेवकूफाना रिस्क। यू डोंट नो योर टॉलरेंस लेवल। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट माय टॉलरेंस लेवल। यू डोंट नीड टू फॉलो एनीबॉडी एल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन टॉलरेंस लेवल, कि मैं कितना टॉलरेट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप टॉलरेंस लेवल नहीं डिफाइन करेंगे, यू विल गो इनटू डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। रिस्क इसलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब रिस्क में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एडवांटेजेस, एक होता है डिसएडवांटेजेस। इट्स अप टू यू, आप किस साइड पे फोकस करते हैं। एडवांटेज अगर हमें कम नजर आ रहा है, डिसएडवांटेजेस की एक लाइन है, फिर क्या करें? Then pull लेकिन back. एडवांटेजेस स्ट्रांग, वो उन सब 10 फैक्टर से ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज बोली कि मैं वो हूँ जो तुम्हारा गुमान है। मेरे बारे में अच्छा गुमान रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा गुमान रखोगे तो तुम्हारे साथ जिंदगी में बुरा होगा। लाइकवाइज रिस्क के बारे में अगर आपका गुमान ही कि गलत होगा तो गलत ही होगा। बट इफ आई वाज स्ट्रांग, जैसे मैं यूके गया हूँ, आई हैड अ स्ट्रांग सेल्फ बिलीफ आई एम गोइंग टू मेक इट आपने सक्सेस कभी स्टोरी। कभी हार नहीं मानी? नहीं, कभी नहीं। कभी मदर का फोन आया और कभी आप इमोशनल हो गए हो? मेरी मम्मी आज भी मुझसे कहती हैं, तू पता नहीं कौन सा पत्थर का बना। मैं जब भी फोन करती हूँ कहता हूँ ऑल इज वेल। जब मैं रोडों पे सो रहा था तब भी उनको नहीं पता, आज तक उनको नहीं पता आई स्लेप्ट ऑन द रोड्स। ओह। और आपके बाकी भाई, सेम स्टोरी उनकी भी है? वो एक भाई यूके में, तो उनको और क्या चाहिए। सही सही सही। तो यहाँ पे मैं अपने जो हमारी सोसाइटी के जो पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है, बच्चे को अपना टैलेंट नहीं देखने देते। मे बी ही इज़ गुड इन पेंटिंग या कुछ भी ऐसा कर सकता है, वो राइटिंग बहुत अच्छी करता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
देखिए मैं कहता हूँ हमारा जो एजुकेशन इस अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे पता है मेरे ओपिनियन ये बड़ी अनपॉपुलर है, बट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग शेकअप ऑफ द होल एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये डिग्री होल्डर प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जैक्टली। इसके अंदर टैलेंट की कोई कदर नहीं है, ठीक है। इसके अब मुझे एक चीज टैलेंट, हाँ, टाइम वेस्ट समझा जाता है। एग्जैक्टली अब मुझे ये बताया ना, एक बच्चा है मेरे कमरे में वॉक इन करके, क्योंकि डिग्री आपका एक लाइफ का पार्ट है, दैट्स नॉट योर लाइफ। आप अगर मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, यू हैव फैंटास्टिक सीजीपी, यू हैव फैंटास्टिक मार्क्स, आप आते हैं बट यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, आपकी जो पर्सनैलिटी वो ब्रोकन है, तो उसकी जगह एक बंदा आएगा जो बच्चा बिल्कुल अनपढ़ है या थोड़ा पढ़ा लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस है, आई विल हायर दैट पर्सन। यहाँ हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू, या टीचर्स का, मैं कहता हूँ ट्रेन द ट्रेनर्स, जिन्होंने ट्रेन करना उनको ट्रेन करें कि बच्चों को ये अच्छी बात है, नंबर्स अच्छी चीज है, बट एवरी सिंगल चाइल्ड इज अ डिफरेंट चाइल्ड, गिव देम फ्रीडम। मेमोरी टेस्टिंग के अलावा भी कुछ होना चाहिए, कुछ समथिंग क्रिएटिव, लर्निंग बाय डूइंग। उनको फेल होने के, मैं कहता हूँ कि गिव चिल्ड्रन फ्रीडम टू फेल, कि उनको फ्रीडम दो, बेटा फेल होने से वो ज्यादा जल्दी सीखेंगे। बच्चों को हम सिखाते हैं ना कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होना, ब्लडी लाइफ में इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी टू बी सक्सेसफुल, प्लस देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बीइंग सक्सेसफुल। सो बच्चों के दिमाग से डिग्री होल्डर, इल्म और तालीम में बड़ा डिफरेंस है, तालीम याफ्ता और काबिल होने में बड़ा डिफरेंस है। अगर हम बच्चों को काबिल बनाएं और उनको इल्म सिखाएं और उनके पैशन को परस्यू करने दें, उनको नर्चर करें, इवन इफ दे आर फेलियर स्टोरी, ट्रस्ट मी वन डे दे विल बी अ सक्सेस स्टोरी। जबरदस्त। तो सक्सेस से मैं कहना चाहती हूँ, आप समझते हैं कि आप लास्ट स्टेज ऑफ सक्सेस हैं या इससे भी आगे कुछ होगा? मुझे हमेशा लगता है कि हम बिगिनर, यू आर बिगिनर। एब्सोल्युटली। मुझे हमेशा लगता है कि हम जब भी उठता हूँ ना, आई ऑलवेज थिंक मुझे अनलर्न करना, मैं जो भी लाइफ में लर्न किया इट्स अनलर्नड। टुडे इज अ न्यू डे, इट्स अ न्यू डॉन, इट्स अ न्यू मी, इट्स अ न्यू लाइफ। दैट्स ग्रेट। ये हमें कोई भी चीज मिलती है हम कहते हैं बस ये ठीक है, अब बाकी लेके क्या करना, हमारे जैसे ही तो है। लाइक एक आगे की चीज से अपने से बड़ा स्टेप जो है हम नहीं ले पाते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे सर की बहुत अच्छी लगी है कि डेली आप अपने आप को बिगिनर समझें और कुछ सीखने की अपने अंदर रखें। सर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि रिस्क हमने ले लिए, एक तो सिचुएशन हम उसमें सरेंडर भी कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा रिस्की लाइफ अपनी लग रही है तो हम सरेंडर करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम बहुत ही लग्जरियस सी लाइफ भी गुजार सकते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई काम करना? देखिए, अब ग्रो इंसान कब होता है, जब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। इंसान एक स्प्रिंग की तरह है, जितना इसको खींचोगे उतना बड़ा होता जाएगा। यू नीड सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर इन योर लाइफ। आई थ्राइव ऑन प्रेशर। जब प्रेशर नहीं होता मेरी लाइफ में, मुझे लगता है कि बोरिंग सी लाइफ है। आई लव प्रेशर because pressure means you're doing something incredible, you're doing something different, you're out of your comfort zone, and it's very very important for children to come out of their shell. वो जो एक शेल सा बना होता है उससे बाहर निकलना, कि आप छोटे आप नहीं कर सकते, या तुम बहुत मोटे हो तुम नहीं पतले हो सकते। exactly. ये एक जो हमारा सुनते हैं हम लोग, तो कंफर्ट जोन से बाहर आके जो हम वर्कआउट करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आके जितना हम पढ़ते हैं, जितनी हम स्टडी करते हैं, तो फायदा उसी का होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। आप बच्चों को इनकरेज करें। मैंने बताया ना कि गिव देम फ्रीडम टू फेल। आप उनको फ्रीडम देके, बेटा फेल भी हो जाओगे तुम मेरे बेटे हो, आई एम नॉट गोइंग टू डिसोन यू, यू आर स्टिल माय चाइल्ड। एग्जैक्टली। क्योंकि बच्चा है, हमें तो धमकियां कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा अगर तुम फेल होगी, तो ये पेरेंट्स की बहुत बुरी बात है, और छोटा सा बच्चा डिप्रेस हो जाता है। एग्जैक्टली। आप ये देखें दुनिया में जितने लोग जो बड़े लेवल पे, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एड शेरन, अब जिनको देख लें, ये फेलियर थे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। दे वर फेलियर्स बट दे परस्यू देयर पैशन एंड दे गिव दिस वर्ल्ड समथिंग टोटली डिफरेंट। अगर बच्चे को एक और आप डॉक्टर बना रहे हैं तो आप बड़ा कमाल कर रहे हैं, एक बच्चे को एक और इंजीनियर आप बना रहे हैं तो बड़ा कमाल कर रहे हैं आप। उसका देखिए उसके अंदर क्या यूनिक एबिलिटी है, उसके अंदर क्या यूनिक टैलेंट है, आप उसको फोर्स कर रहे हैं टू बी व्हाट यू वांट हिम टू बी। जस्ट गिव हिम द फ्रीडम, जस्ट द चॉइस टू बी व्हाटएवर ही वांट्स टू बी, एंड दैट्स वन ऑफ माय बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। मेरी मम ने मुझे हमेशा फ्रीडम दिया कि बेटा बी व्हाटएवर यू वांट टू बी, द ओनली थिंग यू हैव फ्रॉम मी इज सपोर्ट एंड प्रेयर्स, दैट्स इट। जबरदस्त। सर मैं जानना चाहती हूँ, बल्कि आई थिंक मेरे पास इसी क्वेश्चन का आंसर भी है, हु वाज योर इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन टाइम के हिसाब से बदल जाती है। अच्छा। शुरू में मम थी, फिर मेरी बहन थी,
जिनके नाम पे मेरी बहन की डेथ हो गई थी 2014 में। शी वाज लाइक माय मम। ओ यंग एज में काफी ज्यादा, मतलब उनकी जब 40 45 के ब्रैकेट में थी, तो किसी अननोन रीजंस की वजह से मैं वापस उनका जनाजा भी अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन आज उनको होमेज पे करने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आई स्टार्टेड अ फाउंडेशन उनके नाम पे, जिस पे हम स्कूल शुरू कर रहे हैं, स्कूल्स को फंडिंग दे रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और Excellent. उनके नाम पे मैं टीबी का हॉस्पिटल बना रहा हूँ। जबरदस्त। उनको टीबी हुआ था? उनकी टीबी की वजह से ओह, डेथ हुई थी। मेरे सही। फादर की टीबी की वजह से डेथ हुई थी। मुझे खुद टीबी हुआ था व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। अब रिकवर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। recovered। तो यानी मदर रही, उसके बाद सिस्टर, उसके बाद कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई हो, जैसे बच्चों के क्रिकेटर्स होते हैं, इमरान खान हमारा फेवरेट है, इस तरह समथिंग मैंने कोई बताया ना कि इस जैसा बनना है बड़े होके? मैं हमेशा मेंटोर्स रखता हूँ अपने, कि पता क्या होता है कि आप किसी को कॉपी पेस्ट ना करें। आप टाइम के हिसाब से, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कॉलेज में था, तो मेरे बहुत अच्छे प्रोफेसर, उनकी ड्रेसिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। सही। तो मैंने उनसे ड्रेसिंग का आर्ट समझा, कि मुझे उसने बताया कि ड्रेसिंग कैसे अच्छी होती। सही। फिर एक मेरे प्रोफेसर थे, उनके बात करने का स्टाइल बड़ा मजे का था, तो मैं उनसे बात करने का स्टाइल और सीखा। मैं ये सारा फ्यूजन देख रही हूँ आपके अंदर। तो मैं आई टुक बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो क्योंकि आपकी लाइफ में मेंटोर्स बड़ा मैटर करते हैं। Exactly. और मेरी वाइफ मेरी मेंटोर है, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ, जबरदस्त। डेली बेसिस पे सीखता हूँ। कुकिंग सीखते हैं? कुकिंग तो मैंने डे वन से बोला कि भाई दिस इज नॉट नो गो जोन, आई एम नॉट गोइंग देयर। सही सही सही। तो सर, प्रोग्राम एंड करते हैं विद अ मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं। देखिए, मेरा आप लोगों को सिंपली एक ही लेसन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आइडेंटिफाई योरसेल्फ हु यू आर, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, द वर्ल्ड इज गोइंग टू आइडेंटिफाई यू, दे आर गोइंग टू डिफाइन यू। फिर गिला नहीं करना कि जो दुनिया मेरे साथ ज्यादती कर रही है। अपने आप को आइडेंटिफाई करें, परस्यू योर पैशन। ट्रस्ट मी, जिंदगी जितनी भी है, जब व्हेन यू परस्यू योर पैशन, इवन इफ यू फेल, यू एंजॉय योर लाइफ। और जिंदगी में अगर आप इंजॉय नहीं कर पाते, पैसा है, सारा कुछ है, यू आर लीडिंग अ वेरी कंफ्यूज्ड लाइफ। डोंट बी कंफ्यूज्ड, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड फॉलो योर पैशन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर डिलाइटफुल प्रेजेंस विद अस। थैंक यू सो मच। No problem. व्यूअर्स, आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमें डीएम करके ज़रूर बताइएगा, कोई आपके अपने प्रॉब्लम्स भी हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एमटी टीवी। स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। अल्लाह हाफिज़।